चलें जी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। और जो अब हमारी क्लास होगी वो कुरानिक अरबिक की क्लास है, जिसको लिसानुल कुरान का नाम दिया गया है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। कुछ चीज़ें हम जो हैं वो इसको डिस्कस करेंगे। I also want to welcome all those English-speaking brothers and sisters to this session. And this is the session of Quranic Arabic. I will definitely repeat whatever I say in Urdu, so I will definitely appreciate your patience. And inshallah, Allah will reward you for your patience. So first, I will definitely explain some of the concepts in Urdu. Then I'll come back to you people as well, and I will try to explain everything in English as well. Thank you very much and Jazakallah khair. तो जी सबसे पहले हम अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। आपके साथ मैंने किताब शेयर की हुई है जो लिसानुल कुरान, और ये इसका जो है अल जुज़ुल अव्वल वॉल्यूम 1 है आपके पास, उर्दू में आपके पास मौजूद है। ये हमने पीडीएफ में कन्वर्ट करवा के कॉपी आपको आपके साथ शेयर की है, क्योंकि उर्दू में ये कॉपी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थी। इंग्लिश की कॉपी ऑनलाइन अवेलेबल थी, और इंग्लिश की कॉपी में बहुत सारी मिस्टेक्स भी हैं, मगर उर्दू जो है उसमें मिस्टेक्स नहीं हैं। थोड़ा सा हम अरेबिक के अगर बैकग्राउंड को देखें, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में एक स्पोकन या कोलोकियल लैंग्वेज होती है, और एक होती है, आपको पता है, फॉर्मल लैंग्वेज होती है। स्पोकन में तो हर बंदा जिस तरह चाहे बात कर सकता है, मगर जो फॉर्मल होती है, चाहे वो रिटन हो चाहे वो स्पोकन हो, तो उसमें कवायद, रूल्स, रेगुलेशंस, तमाम चीज़ों का ख्याल करते हुए वो यानी कि इंग्लिश लिखी भी जाती है और उसको पढ़ा भी जाता है और बोला भी जाता है। तो इसी तरह जो अरेबिक है, अरेबिक भी 3 तरह की है। एक जिसको आमी अरेबिक कहा जाता है या कोलोकियल कहा जाता है, जो आम अरब अपनी यानी कि बाजारों में, घरों में और आम जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, देहातों में, वो आमी अरबिक होती है। और दूसरी को कहा जाता है फुसहा। फुसहा जो होती है वो यानी जैसे कि मीडिया में यूज हो, न्यूज़पेपर्स में यूज हो, ऑफिस के कामों में इस्तेमाल हो, तो उसको फुसहा कहते हैं। और एक जो है
وہ اس کو کہا جاتا ہے لسان العرب، یعنی کہ بہت پرانے عرب لوگوں کی زبان، اس کو لسان العرب کہا جاتا ہے۔ میں دوبارہ ان الفاظ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ جس طرح انگلش لینگویج کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ ایک کولوکیل لینگویج ہوتی ہے یعنی اسپوکن لینگویج ہوتی ہے جو گلی محلے گھروں میں بات چیت کی جاتی ہے اور ظاہری طور پر گرامر کے قوانین کا خیال نہیں رکھا جاتا جب کولوکیل زبان بولی جاتی ہے، استعمال کی جاتی ہے، مگر جب ہم بات کرتے ہیں فارمل انگلش کی تو فارمل انگلش میں تمام قوانین کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ میں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور ان کو ہم کمپیئر بھی کریں گے انگلش کے یعنی کہ جو گرامیٹیکل رولز ہیں اور عربک کے گرامیٹیکل رولز کے ساتھ انشاءاللہ العزیز۔ تو وہ جو فارمل لینگویج ہے چاہے وہ اسپوکن ہو چاہے وہ ریٹن ہو تو اس میں تمام قوانین کا لحاظ رکھا جاتا ہے، خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جو عربک ہے، عربک 3 طرح کی ہے۔ جی مصباح، آپ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ پلیز پوچھ لیں۔ جی جی انمیوٹ کر کے آپ سوال کر لیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا جی، I repeat all these things in English as well. What I said in Urdu, like we talk about English language. English language is of 2 types. Number 1, that is colloquial language, that is spoken in streets, in shops, in homes, and everywhere. And while people they speak in colloquial language, they do not adhere to grammatical rules. Whatever they speak, they keep on speaking. But when it comes to formal English language, either it is written or spoken. Now we need to pay heed to all the grammatical rules, how the sentences are to be constructed, the differences between sentences like simple sentence, compound sentence, complex sentence, where to use different parts of a speech like noun, pronoun, adjective, adverb, conjunctions, and where to use different phrases as well. So when we talk about Arabic, we also divide Arabic in 3 types of languages. The first type of Arabic is again colloquial language. That is means spoken, that is spoken by army, means all those people, they are known as ordinary people in the streets and shops, in their homes, and definitely they do not pay heed to grammatical rules. The second type is Fusha, and Fusha is what? The type of Arabic language, please mute your mic if somebody is unmute. Fusha is a language, is a type of Arabic language that is used in offices, in media, in newspapers, where whenever they use that type of Arabic, they definitely pay heed to grammatical rules. And the third type is Lisanul Arab, that is the language of ancient Arab people, the old Arab people. And the Quran was revealed in that language. Okay, I'll come back again to you. جی میں اب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہم نے پہلے اس کنسیپٹ کو سمجھا کہ عربک کی کتنی ٹائپس ہیں، اور جو لسان العرب ہے وہی اصل میں زبان ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا۔ اب پہلی کلاس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور اگر ہمارے پارٹیسپینٹس کچھ وہ لوگ ہیں جو پہلی کلاس میں نہیں تھے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو عربک الفابیٹ ہے وہ 29 حروف پہ مشتمل ہے۔ حروف تہجی جو عربک کی ہے وہ 29 حروف پہ مشتمل ہے۔ اب حرف کس کو کہتے ہیں؟ جیسے الف یہ حرف ہے، با حرف ہے،
सा हर्फ है, इनको हुरूफ कहा जाता है। तो ये 29 लेटर्स बनते हैं या 29 लेटर्स बनते हैं, जिसको हम अरेबिक अल्फाबेट कहते हैं। यहां तक बात क्लियर है आपकी? यस सर। ठीक यस सर। है, थैंक यू। आगे चलते हैं। अब कुछ बुनियादी चीजें हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा, और उनको समझने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और फिर हम जो है अपनी जो है जबान को यानी ग्रामर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम उर्दू में कहते हैं जेर जबर पेश, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर लेता हूँ आपके लिए। ये देखें, मैंने जबर को हाईलाइट किया है, और यहाँ पर मैंने जेर को हाईलाइट किया है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं जो है पेश को हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं ये यहाँ पर एक और वर्ड है, उसको मैं हाईलाइट करता हूँ, जैसे कि या है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब देखें, जो पहला मैंने हर्फ यानी कि जिसको हाईलाइट किया अलिफ, इस पे जबर है। फिर दूसरा मैं इस तरफ आ जाता हूँ, ये मीम के नीचे जेर है, और दाल पे पेश है, और यहाँ पर जो या है इस पे इसको कहते हैं जज़म है, ठीक है। तो ये जो है जबर, जेर, पेश, इनको हरकात कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? हरकात। और जिस भी हर्फ पे, चाहे वो जबर हो, जेर हो, पेश हो, उसको मुतहर्रिक कहा जाता है। उस हर्फ को क्या कहेंगे हम? मुतहर्रिक कहेंगे। तीसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली चीज मैं बताई कि ये जो है जेर जबर पेश, इनको हरकात कहा जाता है, और जिन हुरूफ पे जेर जबर पेश होंगे उनको मुतहर्रिक कहा जाता है। तीसरी चीज ये बता रहा हूं कि अरबी में जबर को फतहा कहा जाता है, फतहा या फतहतुन, और जेर को कसरा कहा जाता है या कसरतुन, और पेश को ज़म्मा कहा जाता है या ज़म्मतुन कहा जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है कि जेर जबर पेश को हरकात कहते हैं, जबर को हम फतहा कहते हैं, जेर को हम कसरा कहते हैं, और पेश को हम ज़म्मा कहते हैं। यहाँ तक कोई सवाल हो आप लोगों का? सर एक बार रिपीट कर सकते हैं, हमने नोट नहीं कर पाया ये। मैं रिपीट करता हूँ। मैं ये एक मिनट इंग्लिश में रिपीट कर लेता हूँ, फिर दोबारा उर्दू में आता हूँ। श्योर श्योर। Brothers and sisters who speak in English, I repeat whatever I said in English. Actually, you can see that I have highlighted some letters. I'm not saying words, these are letters. Like this one is alif, dal, mim, and ya. Now, in Arabic, we say this, whatever, these are movements, harakat in Arabic, harakat or ashkal, but we can translate them into English as movements. Now, whatever on alif is, it is known as fatha. In Arabic, we say fatha, fathatun. And this on dal, this is known as zamma, zammatun. And this on mim, it is said kasra, kasratun, right? And these are movements. And in Arabic, we say yani ke harakat or ashkal. Now, the word, the harf on that fatha is over there, it is known as maftuh. And the word, the harf or letter on that zamma is, it is known as mazmum. And the harf means that is covered by kasra, it is known as maksur. So these are the harakat, fatha, zamma, kasra. This is known as maftuh, this is known as mazmum, and this is known as maksur, right? And these are mutaharrik, means these words have been covered by movements. Okay, जी दोबारा मैं आता हूँ कि मैं ये आपको बता रहा था कि जब भी हम अरबिक पढ़ते हैं, जो अरब लोग होते हैं वो बगैर इन हरकत के
अरेबिक को प्रॉपर तरीके पे से पढ़ते हैं। और इंशाअल्लाह अल अजीज इस कोर्स का भी मकसद ये है कि जब भी आपके सामने अरेबिक यानी अरबी की इबारत आ जाए तो उस पे अगर कोई जबर जेर पेश ना हो तो आप ग्रामेटिकल रूल्स को यानी कि ग्रामर जो हम पढ़ रहे हैं उसको नहव और सर्फ कहा जाता है, इनको समझ के और जब आप इनको अप्लाई करेंगे तो आप आसानी के साथ बगैर जेर जबर वाली और पेश वाली इबारत को भी अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैं रिपीट करता हूँ, ये मैंने 3 जो है आप देखें हुरूफ की बात कर रहा हूँ, अल्फाज की बात नहीं कर रहा या कलिमा की बात नहीं कर रहा। अब मैं बताऊंगा कि अरबी में कलिमा किसको कहा जाता है, वर्ड और कलिमा क्या होता है इसमें और इसकी डिवीजन क्या है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हुरूफ में मैंने देखें कि पहला हर्फ इस पे जबर है, उर्दू में इसको जबर कहते हैं, दूसरे हर्फ पे इसको पेश कहते हैं और जो मीम है इसको जेर कहते हैं। अरबी में इसको जबर को फतहा कहा जाता है या फतहतुन, और पेश को जम्मा कहा जाता है जम्मतुन, और जेर को कसरा कहा जाता है कसरतुन कहा जाता है। अब जिन हुरूफ पे यानी जिस हर्फ पे फतह होगा उसको कहेंगे मफ्तूह, जिस हर्फ पे जम्मा होगा उसको कहेंगे मजमूम, जिस हर्फ पे जेर होगी उसको कहेंगे मकसूर। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? कोई क्वेश्चन? ओके सर, ठीक है। ठीक है, अच्छा। फतहा जम्मा कसरा, और जिस पे होगा उसको हम कहेंगे मफ्तू, जब फतह होगा तो मफ्तू, जम्मा होगा तो मजमूम, और कसरा होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, मकसूर कहेंगे। एक यहां पर आप देखें और हर्फ है, पहले मैं इनको बिठा देता हूं। यहां आपके सामने है एक रा और ये दूसरा रा आ रहा है आपके सामने, ठीक है। ये जो इन हुरूफ पे इसको कहते हैं ये तशदीद वाले हैं, यानी ये जो रा है समझे डबल दफा इसको पढ़ा जाएगा। वो पढ़ने का इंशाल्लाह आगे हम जब तजवीद में पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने का हम हिज्जे से पढ़ेंगे कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। ये जो है ये इसको तशदीद कहा जाता है। ये जो 3 आपको जैसे कि ऊपर के हिस्से नजर आ रहे हैं ये तशदीद कहा जाता है। रा पे भी तशदीद है और दोनों रा पे तशदीद है, और इन दोनों हुरूफ को हम कहेंगे मुशद्दद, इनको कहा जाएगा मुशद्दद। अर्रहमान में रा मुशद्दद है, अर्रहीम में रा मुशद्दद है। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। ये बा पे क्या आ रहा है, कोई बताएगा? बा पे बा पे क्या है, इसको क्या कहेंगे? कसरा। नहीं, ये जो तशदीद कहा जाएगा और ये मुशद्दद है। अच्छा, दाल पे क्या आ रहा है प्लीज? मजमूम। नहीं, ये तशदीद तशदीद आ रही है और इसको कहेंगे क्या? तशदीद नहीं, तशदीद है मुशद्दद। मुशद्दद। अच्छा, ये या पे क्या आ रहा है? तशदीद तशदीद ठीक है, और इसको कहेंगे क्या? मुशद्दद। मुशद्दद। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं एक और सवाल पूछता हूँ, ये क्या आ रहा है इस पे दाल पे? जम्मा। और इसको क्या कहेंगे? मजमूम। 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 वेरी गुड। और आइन पे क्या आ रहा है? कसरा। कसरा। और इसको क्या कहेंगे? मकसूर। 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो बड़े जबरदस्त जा रहे हैं, जबरदस्त। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई मसला तो नहीं इस पे? अच्छा, मैं इसको इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। Brothers and sisters, I repeat whatever I said in Urdu. Now you can see this word Rabbi. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Now on word means harf or letter ba, there are 2 movements. Now downwards it's maksur, but upwards on the upper part that it is known as tashdeed. We call it tashdeed. Again on ra it is tashdeed, on ra rahim tashdeed,
And dal of ad-din, tashdid. So we call it tashdid, and the letter on that tashdid is given is known as mushaddad. It is known as mushaddad. Now I'll ask you for the sake of understanding. So anyone from you, what is this? Ba is a tashdid letter. Yes, it is tashdid, and what it is called? Mushaddad. Very good. Okay, and what is this again? Someone else other than you, please. تشديد Tashdid. And what is it called? مشدد. Very good. Jazakallah khair. Now move forward. अच्छा जी, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको मैं जो है कुछ और चीजों की आपको पहचान करवाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि ये आपको नजर आ रहा है हुदन, वैसे हम पढ़ा जाए तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? जो दाल पर हम दो जबर नजर आ रहे हैं, आप इसको क्या पढ़ेंगे? हुदन, तनवीन है ये, दो जबर को क्या कहा जाएगा? तनवीन। वेरी गुड, Tanween. वेरी गुड, Fathatain. यस यस, फतहतैन, दिस इज व्हाट तनवीन, इसको हम तनवीन कहेंगे। दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहा जाता है, ठीक है? दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहा जाता है, और जिस हर्फ पे दो जबर या दो जेर या पेश होंगे उनको मुनव्वन कहा जाएगा, उसको मुनव्वन कहा जाएगा। मैं दोबारा इसको कहता हूं जी, दो जबर, दो पेश, दो जेर को तनवीन कहा जाता है, और जिस हर्फ पे दो जबर या दो जेर या दो पेश होंगे उसको मुनव्वन कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मैं इंग्लिश में इस बात को रिपीट कर लेता हूँ कि brothers and sisters, you can see on dal there are two fathas. It is also known as fathatain. Okay, whenever the harf or the letter on that we have got two fathas, two kasras or two zammas, now that is known as tanween, means two zabar, two zer, or double zabar, double zer, double fatha, double kasra, double zamma. It is known as tanween, and the word on it that is means that the tanween is, it is known as munawwan. Do you understand? Can you repeat it? Anybody from you? Yes, I would like to try. Please, please. You said that if there are two markings on a letter, for example, two fathas, two dhammas, or two kasras, the letter itself is called tanween, Yes. and the description of the letter is called munawwan. Very good. Very good. What's your name, brother? Faraz, MashaAllah. Where are you from, Faraz? from Denmark. Very good. Good. Thank you. Okay. I'll definitely go for exercise then. I'm sorry, was that to me? No. I'm going to Okay. ask in Urdu first, then I'll come back to you. Right? Jazakallah khair. Yes. अब मुझे ये बताएं आप कि ये जो मीम पे निशानी, इसको क्या कहा जाएगा? तनवीन है ये। जज़म, मीम पे मीम तनवीन, तनवीन, दम्मा की और तनवीन, Dhammatain. जी ज़म्मतैन, और इसको क्या कहा जाएगा वैसे? हाँ, मुनव्वन। मुनव्वन, मुनव्वन, मुनव्वन। वेरी गुड। मुनव्वन। अच्छा, यहाँ देखिएगा ये गौद पे क्या आ रहा है? फतहतैन। फतहतैन, फतहतैन। फतहतैन। अच्छा, फतहतैन को क्या कहेंगे उर्दू में, आम उर्दू में? दो जबर। तनवीन,
तनवीन कहेंगे. अच्छा, और तनवीन जिस हर्फ पे तनवीन उसको क्या कहा जाएगा? Munawwan. Munawwan. मुनव्वन. वेरी गुड, माशाल्लाह. वाहिद वाहिद. कोई सवाल यहाँ तक आप लोगों का हो तो पूछ लें प्लीज. एनी क्वेश्चन? जिस वर्ड पे ये दो जबर दो जेर दो पेश यूज होंगे उसको मुनव्वन कहा जाएगा. क्या कहा जाएगा उनको? मुनव्वन कहा जाएगा. Munawwan. ठीक है. अच्छा, एक आपने अभी देखा होगा कि ये मिसाल के तौर पर आपके सामने मैं लाता हूँ. मीम पे ये क्या है जी? जज़म. Sukoon. Jazm या सुकून. अच्छा, ये अलिफ पे भी यानी लाम पे भी क्या है? जज़म है. साकिन है मीम जज़म पे. या सुकून. साकिन और जज़म में क्या फर्क है? सेम है, एक ही. पक्की बात है. थोड़ा सा अगर इसको ट्रांसलेट करें प्लीज. हम ये कहेंगे कि जी ये मीम जो है इस पे जज़म है. उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम. मीम पे क्या है? जज़म है. और जज़म वाले हर्फ को क्या कहेंगे? साकिन कहेंगे. व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून. अब लाम जो है ये इस पे जज़म है और इसको हम कहेंगे ये साकिन है. जिस हर्फ पे जज़म होगी उसको साकिन कहा जाएगा. कोई रिपीट करे आप में से प्लीज. और जिस लफ्ज पर जज़म पाई जाएगी उसको साकिन कहते हैं. हर्फ और लफ्ज में फर्क है. हर्फ पे. हर्फ. जी हर्फ. हाँ. जिस बताएं हर्फ तो. पर जज़म हाँ, होगी तो हम उसे साकिन के तौर पर ट्रीट करेंगे. वो उसको साकिन ही कहेंगे. वो साकिन क्या होगा. होगा? वो साकिन साकिन. होगा. वेरी गुड. Exactly. और कोई बताए? किसी का कोई सब समझ गए इसको? यस सर. चले, मैं अब सिर्फ आपसे सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए कि वाकई आपको समझ में आ गया है. ये बा पे क्या है जी? जल्दी बताएं. बा पे जज़म है सर. और इसको जज़म कहेंगे क्या? साकिन. और जिस साकिन हर्फ पे जज़म कहेंगे. होता है साकिन कहते हैं. वेरी गुड. ये रा पे क्या है? जज़म में जज़म है. साकिन कहते हैं इसे. इसे Very साकिन good. कहते हैं. वेरी गुड. मीम पे क्या है? जज़म है और इसे जज़म साकिन में कहते हैं. साकिन कहते हैं. माशाल्लाह. वेरी गुड. अब मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ इंग्लिश बोलने वालों के लिए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. और प्लीज याद रखिएगा जब ये हमारा अगर सेशन खत्म हो जाता है उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि यानी कि 40 मिनट में तो 20 मिनट के लिए एक और सेशन दोबारा आ जाएंगे तो वो उसी लिंक को आप फॉलो करके आइएगा. ठीक है? अच्छा जी. brothers and sisters, again I come back to you people. You can see that there are three huruf or letters. They have been encircled. Number one, meme. Now the sign on meme is known as jazm. We call it jazm. The sign on ra is known as jazm. The sign on ba is known as jazm. Jazm also comes like fatha, zamma, kasra on huruf, on letters. We are not talking about words, we are talking about letters. Meme is a letter, ra is a letter, ba is a letter. Now this is jazm, and on the letter on that jazm comes, it is known as sakin, sakinun, sakin. Okay, the means this sign is known as jazm. The letter on that jazm comes, it is known as sakin. I hope you understand. Now I'll ask you and we'll move further. So can you help me? What is on this noon? Jazm. Very good. And what we call it? Sakinun. Sakinun. Very good. What is on this ya? Jazm. Jazm. And what we call it? A letter with a jazm is called a sakin letter. Sakin. Very good, sister. Now what is on it? This noon is?
Again, jazm. Jazm, and we call it sakin. Anyone else? Any male brother? Any brother who can find, means help us in what is on ra? Jazm. And what is it called? It's second. Very good. Jazakallah khair. Now we move forward. ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं आप लोगों को? आगे हम बढ़ते हैं. अब हम जो है असल में जो अरबिक को हम शुरू करने जा रहे हैं. ये तो वो चीजें थी जो बहुत ही बुनियादी हैं और ये आपको इंशाल्लाह याद हो गई होंगे और इनको याद कर लीजिएगा. और जो आपके पास कुरान का अलग से नुस्खा है उस पे जरूर आप जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, तो इससे यानी आपकी एक्टिविटी रहेगी. और भी हम आगे क्या करेंगे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि हम सिस्टर्स और ब्रदर्स के अलग अलग ग्रुप्स बनाएंगे जहाँ पर आपकी ग्रुप एक्टिविटीज भी होंगी. तो एक दो दिन में हम वो भी इंशाल्लाह कर लेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कितने लोग जो है हमें रेगुलरली ज्वाइन कर रहे हैं और कितना क्राउड हमारे पास होता है. अच्छा जी, ठीक है. देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज जो पढ़ते हैं लोग उनको पता है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश में? वैसे कोई बताएगा आप में से? 8 parts of speech. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. अच्छा, कौन कौन से हैं? Noun, verb, adjective, pronoun, conjunction, interjection. तो कोई और बताए प्लीज. पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इंग्लिश में है कौन कौन से हैं? कोई और बताए आप में से? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ जी. पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 हैं इंग्लिश में. ये सारे लोग मुतवज्जो हैं, सुन रहे हैं? आर यू ऑनलाइन ऑन जूम? जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस. इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है. और इन्हीं से अंग्रेजी जुबान में सेंटेंसेस बनते हैं. सेंटेंस में नाउन का क्या रोल होता है, वर्ब का क्या रोल होता है, प्रोनाउन का क्या होता है, एडजेक्टिव क्यों यूज होती है, एडवर्ब क्यों यूज होता है, कंजंक्शंस क्यों यूज होती हैं. तो इसी तरह जब हम बात करते हैं अरबी में, तो अरबी में असल में इन सब को कहते हैं कलीमा. वर्ड को कहा जाता है कलीमा. क्या कहा जाता है जी वर्ड को अरबी में? Kalima. कलीमा कहा जाता है. कलीमा. कलीमतुन. हाँ, कलीमतुन, कलीमा, कलीमतुन. The word, me again, I use words very carefully. The meaningful word in Arabic is known as kalima. जिस लफ्ज की कोई मीनिंग होती है या वो कोई माना दे रहा होता है उसको हम अरबी में कलीमतुन या कलीमा कहा जाता है उसको. ठीक है. The word that has any meaning or the meaningful word is known as kalimatun or kalima in Arabic. Now that kalima is of 3 types. I'll come back to you again. I repeat whatever I said, that in Arabic, the meaningful word or the word that conveys any sense, any meaning, it is known as kalima or kalimatun. And it has 3 types. What are those types? I repeat, I say in Arabic, ismun, fi'lun, harfun, or ism, fi'l, harf. Kalima is divided in 3 parts. It has 3 parts. What are those 3 parts? Ismun, fi'lun, and harfun. Unlike English, in English there are 8 parts of speech. But in Arabic, there are 3 types of kalima, and Arabic is more fasih, and more means you'll see a lot of variety and depth in Arabic. In English, we cannot form any sentence without using the verb or auxiliary verb. It is necessary to either to use a verb or even auxiliary verb to form a sentence. But in Arabic, we can form a sentence by using 2 nouns. I will come back to you again. So, मैं उर्दू में बात करता हूँ आपसे कि जी जो लफ्ज मीनिंग देता है यानी बामानी लफ्ज को अरबिक में
कलिमा कहा जाता है कलिमतुन, और जो कलिमा है या कलिमतुन है इनकी तीन अकसाम हैं। पहले को यानी कौन सी तीन अकसाम है? इस्मुन, फ़िअलुन और हर्फुन। इस्म, फ़ेल और हर्फ। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस? मैं चैट देख लेता हूँ, अगर कोई सवाल हो तो मैं बता देता हूँ। हाँ जी, वेरी गुड। कोई सवाल तो नहीं है आपका? नहीं सर। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके फिर आपसे थोड़ी बात, यानी कि आपसे सवाल करूंगा इंशाल्लाह। जो इस्म होता है तो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे थोड़ा डिटेल से, और आपको एक्सरसाइज भी कराई जाएंगे इंशाल्लाह इस हवाले से। इस्म, किसी भी नाम को इस्म कहा जाता है। किसी इंसान का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी जगह का नाम हो। मिसाल के तौर पर रजुलुन, बंदे को कहा जाता है। इमरातुन, किसी औरत को कहा जाता है। तिफलुन, किसी बच्चे को कहा जाता है। किसी मर्द का नाम हो जैदुन, उमर, बकरुन, किसी औरत का नाम हो जैसे आयशतु और फातिमतु, ज़ैनबु, ये औरतों के नाम हो गए। जगह का नाम हो जैसे मस्जिदुन, मस्जिद आ गया। या मिसाल के तौर पर कोई कमरा, गुरफतुन, घर, बैतुन, घर का कोई हिस्सा जैसे बाबुन। ठीक है, ये इसको हम इस्म कहते हैं, और इसकी पूरी डिटेल्स आएंगी, इसकी क्या अक़साम है, कैसे इसको हम समझेंगे, एवरेज आपके सामने आएगी। तो जो इस्म है बेसिकली इसकी मीनिंग है इस्मुन। इस्मुन की क्या डेफिनेशन है? किसी भी शख्स का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी भी चीज के नाम को हम इस्म कहते हैं। और दूसरा जो फेल है, फेल जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मैं बाद में आता हूँ इस पे। फेल वो होता है जो जिसमें किसी जमाने की का माना पाया जाए, यानी किसी जमाने की खबर दे। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, तो ये हमें खबर दे रहे माजी की कि ज़ैद ने माजी में मारा। अगर हम इसके कहें यज़रिबु ज़ैदुन, तो ज़ैद हाल में मार रहा है। या हम इसके साथ लगाएं सौफ यज़रिबु ज़ैदुन, कि ज़ैद मुस्तकबिल करीब में मारेगा। या मिसाल के तौर पर हम ये कहें कद ज़रब ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा है। अब देखिए 3-4 मीनिंग्स हो गई। मैं दोबारा देखता हूँ, बताता हूँ, रिपीट कर लेता हूँ। ज़रब ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, यानी माजी में मारा। यज़रिबु ज़ैदुन, ज़ैद मार रहा है। सौफ यज़रिबु ज़ैदुन, ज़ैद जल्दी ही मारेगा। कद ज़रब ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा है। तो वर्ब उसको कहते हैं जिसमें माना पाया, यानी उसमें कोई मीनिंग हो, और वो मीनिंग कौन सी हो? या तो माजी की हो, या हाल की हो, या मुस्तकबिल की हो, तो उसको हम फेल कहते हैं। मगर इस्म इसके बरक्स है। इस्म में मीनिंग पाई जाती है, मगर वो मीनिंग कौन सी होती है? वो नाम होता है किसी बंदे का, किसी जगह का, किसी चीज का। मगर इस्म में कोई जमाना नहीं पाया जाता, यानी इस्म की मीनिंग में न माजी आता है, न हाल आता है, न मुस्तकबिल आता है, न हाल करीब आता है। और तीसरा जो तीसरी टाइप उसको कहते हैं हर्फ। हर्फ वो है, जैसे इंग्लिश में प्रीपोजिशंस होते हैं इन, एट, ऑन। अब इन, ये आपको पता है कि प्रीपोजिशन कौन सी है? ये इसको कहा, यानी कौन सा हर्फ है? ये प्रीपोजिशन कहा जाता है जो कि किसी भी नाउन से पहले आता है, उसकी जगह बताने के, भाई ही इज इन रूम, वो कमरे में है। द बुक इज ऑन टेबल, किताब जो है टेबल पर है। तो ये उसकी मीनिंग दे रहे होते हैं। इसी तरह जो हुरूफ अरेबिक में होते हैं वो दो तरह की मीनिंग दे रहे होते हैं। या तो वो प्रेपोजिशन की मीनिंग दे रहे होते हैं, या वो कंजक्शन की मीनिंग दे रहे होते हैं। कंजक्शन जैसे दो सेंटेंसेस को मिलाना, जैसे कि मैं और इंग्लिश में बता दूं, he came to us and shared his story। he came to us, एक आपको देखिए क्लॉज आ गया, एंड बीच में कंजक्शन है, उसको मिला रहा है सेंटेंस को, एंड टोल्ड हिज स्टोरी, तो एंड का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह वाव अतफ के तौर पे इस्तेमाल होता है, फा इस्तेमाल होता है अरेबिक में दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, तो वो कंजक्शन का यानी कि मीनिंग दे रहे होते हैं। यानी दो चीजें, या हुरूफ जर होंगे या कंजक्शन की मीनिंग दे रहे होंगे। तो मैं इसको दोबारा कहता हूं, और अगर हमारी क्लास अभी खत्म हो जाए तो हम दोबारा इसी लिंक पे दोबारा आ जाएंगे फौरन इंशाल्लाह। कि जो कलिमा है वो तीन किस्म का है।
اسم فعل اور حرف. اسم نام بتاتا ہے, فعل میننگ دیتا ہے مگر اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے, حرف وہ بغیر اسم اور فعل کے اپنی میننگ نہیں دیتا.